हेलो। यस मैम। हाँ जना, बनाया है? कितने बनाए पूरे? नहीं मैम वो समझ नहीं आया मेरे को। नहीं आए, चलो ठीक है, देखेंगे। आज से हमको नया चैप्टर चालू करना है। वो क्वेश्चन मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगी, ठीक है उसमें। यस मैम। आज से हमको चालू करना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना? तो इसके लिए सबसे पहले कुछ नोट्स बनाते हैं, उसके बाद हम इसको समझते हैं, ठीक है? तो लिखो, the provisions for computation of income from house property provisions for computation of income from house property are covered under the section 200 are covered under section 22 to 27. Income from house property is one of the important head Income from house property is one of the important head of income under the Income Tax Act.
Income from house property is one of the important head of income under the Income Tax Act. Hmm. The taxpayer have been Hmm. Hmm. in particular need Hmm. to know the computation Hmm. and deduction Hmm. available to them on repayment Hmm. it interest and principal of the loan obtained Hmm. Hmm. to purchase the house property if that house properly is let out or self occupied. The amount of interest on borrowed capital of the current year is available under the head house property for the repayment of Hmm. principal is available under section 80C to individuals and Hindu undivided family. Hmm. इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी हाउस प्रॉपर्टी या ऐसा मकान है ना Hmm. जिसमें कोई व्यक्ति या तो खुद रहता है ठीक है या हाँ. फिर उसने उस मकान को खरीदने के लिए लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट पेड करता है Hmm. या फिर हिंदू अविभाजित परिवार का हिस्सा अविभाजित परिवार के अंतर्गत क्या होता है हिंदू अविभाजित परिवार के अंतर्गत अगर वो मकान में रहता है तो क्या होता है हाँ तो कि जो हिंदू अविभाजित परिवार का जो मुखिया है तो जो हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो टैक्स पेड होता है वो सिर्फ उस मुखिया के से मतलब इनकम में पेड होगा बाकी लोगों के इनकम में पेड नहीं होता है हम्म तो इसके लिए जो बेसिक चार्जेस हैं वो कौन से हैं अच्छा इसमें एक चीज और है अगर कोई फर्म है ना और हम्म उस फर्म ने अपने किसी पार्टनर को या अपने किसी कर्मचारी को रहने के लिए अगर मकान दिया हुआ है ले हम्म करके तो वो फर्म की इनकम उससे जो होने वाली इनकम होगी वो फर्म हम्म की इनकम होगी इसके अलावा कोई व्यक्ति जैसे अपन ने किसी किराएदार को मकान दिया ठीक है लेकिन वो उस मकान में किराए से नहीं रहता उसने किसी थर्ड पर्सन को मकान दे दिया तो वो जो होने वाली इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से होगी ना कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से होगी हम्म तो इसके जो जो चार्जेस हैं उन वो कुछ इस तरह से मतलब कंप्यूट होते हैं कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे हम तो लिखो बेसिस ऑफ चार्जेस सेक्शन 22 of act provide as follows note number 1 the annual value of property consisting of any building or land apartment theater of which the SAC is the
owners other than such portion of such property as he may occupy for the purpose of any business or professions carried by him, the profit of which are chargeable to income from house property. It shall be chargeable to income from house under house property. The head income from house property. वही तो हुआ. हाँ. The following points emerge from the above charging sections. इसके आगे भी दूसरे पॉइंट्स हैं, इसमें लिखो A. Tax is charged on income from the building or land. Tax is charged on income from building or land. Apartment, theater or auditorium. The building includes residential building, building laid out for the business or profession, or auditorium for entertainment programs. The location of the building is immaterial. It may be situated in the India or abroad. नंबर 2 लिखो B. Tax is charged on income from land, apartment to building where the land is not. Apartment is a building. The income from land can be charged as business income or income from other sources. इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरी अगर किसी बिल्डिंग से लगी हुई भूमि है, जमीन है ना, उससे होने वाली जो इनकम होगी वो इस हेड में चार्ज नहीं होगी. इस हेड में सिर्फ मतलब जो बिल्डिंग है उससे होने वाली इनकम चार्ज होगी. उससे लगी हुई जमीन जिस पर बिल्डिंग नहीं बनी हुई है उससे होने वाली इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में चार्ज होगी. फिर है सी. वेयर द recipient of the income from house property is not the owner of the building, the income is not chargeable under this head. मतलब कोई बिल्डिंग है जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति मतलब किराए से, जिसको बोलते हैं ना अपन, किराए से लिया हुआ है उसने, और उसके बाद अगर उसको कोई इनकम हो रही है उस बिल्डिंग से, तो वो जो इनकम है वो इस हेड में चार्ज नहीं होगी. फिर लिखो डी. डीमेट ओनरशिप एज पर सेक्शन 27 the following persons
throughout not the legal owner of a property are deemed as be the owner for the purpose of the section number 22 to 26। इसके अंतर्गत फर्स्ट है ट्रांसफर टू अ स्पाउस और माइनर चाइल्ड। मतलब क्या हुआ कि डीमेड पर्सन क्यों कौन होते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसको ऑथराइज्ड किया हो, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई हो यूज करने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति जो है उससे होने वाली जो इनकम है वो जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी दी हुई है। अब जैसे किसी ने एक अपना जो बिजनेस है उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी थर्ड पर्सन को दे रखी है, तो उससे होने वाली जो इनकम है तो वो किसके हिस्से में चार्ज में आएगी? उस व्यक्ति के कि जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है उसके। उस व्यक्ति के जैसे एक व्यक्ति ने जैसे मैंने तुमको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि तुम मेरे घर में रह सकते हो, ठीक है, और उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। अब तुम मेरे घर में रह रहे हो और तुम कुछ ऐसा कर रहे हो कि जिससे तुमको इनकम हो रही है, या तुमने मैंने जो तुमको मकान दिया उसने तुमने उसको रेंट पे उठा दिया, ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हारे पास में है। तो जो रेंटल वैल्यू आएगी मकान की, जो रेंट आएगा, तो वो किसकी इनकम में ऐड करोगे? तुम अपनी इनकम में ऐड करोगे कि मेरी इनकम में ऐड करोगे? अपनी इनकम में। अपनी इनकम में ऐड करोगे, ठीक है। इसके अंतर्गत जो पहला है वो है ट्रांसफर टू अ स्पाउस और माइनर चाइल्ड, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? क्या किया इसने? ट्रांसफर टू अ स्पाउस और माइनर चाइल्ड। तो क्या करेंगे इसमें? अगर कोई व्यक्ति है उसने अपनी उसकी जो बिल्डिंग है उसको उसने क्या किया कि अपने स्पाउस के नाम से ट्रांसफर कर दिया, या उसका कोई माइनर चाइल्ड मतलब 18 साल से कम का जो बच्चा है उसने उसके नाम कर दिया है, तो अब जो होने वाली इनकम है वो किसकी इनकम मानी जाएगी? होने वाली इनकम किसकी इनकम मानी जाएगी? उसी की मानी जाएगी जिसको ट्रांसफर किया है। उसकी अपनी खुद की मानी जाएगी। अच्छा, अगला है नंबर 2, होल्डर ऑफ एन impartial asset। होल्डर ऑफ एन impartial asset मतलब ऐसी कोई जमीन है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है ना, तो उसकी जमीन किसकी, मतलब उसकी जो इनकम है वो किसकी मानी जाएगी? जिसके नाम पे हुआ है, अभी बंटवारा नहीं हुआ है तो जॉनर है मैन उसका। हाँ, थर्ड लिखो, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेंबर है, ठीक है, उसको अगर सोसाइटी ने लीज पर कोई जमीन दी हुई है और उस जमीन से अगर कोई इनकम हो रही है, तो वो इनकम किसकी मानी जाएगी? जिसने लीज पे दी है उसकी। ये इनकम एसोसिएशन की मानी जाएगी, उसकी नहीं मानी जाएगी, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम होगी, उसकी अपनी नहीं होगी। फिर अगला लिखो,
4 person in possession of the property. इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी पार्टी के मतलब प्रॉपर्टी के किसी पार्ट का कहना चाहिए क्या कहना चाहिए उसको, होल्डर है ना, बट वो प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस की है, ठीक है। तो इस बेस पर किस जो होने वाली इनकम है वो क्या कहलाएगी? वो किसकी प्रॉपर्टी कहलाएगी? मतलब इनकम किसकी कहलाएगी? जिसकी प्रॉपर्टी है, जो पर्सन उसमें इन्वॉल्व है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, उसकी नहीं कहलाएगी। वो जो टैक्स कौन पेड करेगा? जिसकी अपनी प्रॉपर्टी है। जिसकी प्रॉपर्टी है। फिफ्थ लिखो, पर्सन हैविंग राइट इन अ प्रॉपर्टी फॉर a period not less than 12 year. इसका मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति जो 12 साल से कम समय में किसी संपत्ति पर अधिकार 12 साल से कम समय से किसी संपत्ति पर अधिकार रख रहा हो, ठीक है। अब लिखो इसके की पॉइंट। पहला लिखो, if the firm transfer its house property if the firm transfer its house property to its partner, therefore dissolution therefore नहीं, before dissolution mainly by book entries annual value of the property it's taxable in the head of the firm। मतलब कोई फर्म है जो कोई हाउस प्रॉपर्टी अपने पार्टनर को ट्रांसफर करती है डिसोल्यूशन से पहले, है ना, तो उसकी जो एनुअल वैल्यू है वो टैक्सेबल होगी किसकी हेड में? फर्म की हेड में टैक्सेबल होगी, उस व्यक्ति की या उस पार्टनर की हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। नंबर 2 लिखो, where a Muslim transfer a property of a value of more than ₹100 is must be registered into क्या लिखा है? इंस्ट्रूमेंट and not orally, it is the
position even with respect to a property to have been orally given over by a Muslim husband to his wife in the discharge of his dower dates to her according the income from property thus given will be included in the total income from the husband's property. मतलब कोई मुसलमान है जो अपनी पत्नी को उसके तलाक के समय जो उनको देते हैं ना पैसे, क्या बोलते हैं उसको? डोरी। हाँ, डोरी नहीं बोलते, वो कुछ और ही बोलते हैं वो लोग उसको। तो उसके लिए अगर वो कोई मकान जो कि रजिस्टर्ड हो, ठीक है, उसके नाम रजिस्टर्ड करता है, तो वो भी वो जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी मानी जाएगी और उससे होने वाली इनकम भी जो है वो हस्बैंड की इनकम में जोड़ी जाएगी। इन केस ऑफ को पार्टनरशिप, थर्ड लिखो, इन केस ऑफ को पार्टनरशिप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, cooperative housing societies, the income from each building should be assessed in the head of the individual members to whom it has been allocated. Conversely, for all purpose, including attachment and recovery of tax, the individual members should be regarded as the legal owner of the property इसका मतलब क्या हुआ कि कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, उसके जितने भी मेंबर हैं और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो जिन मेंबर्स को उसने ट्रांसफर की हुई है वो अपने जो लीगल मेंबर है उनके उससे होने वाली इनकम जो है वो उनके जो लीगल मेंबर है उनकी इनकम में जोड़ी जाएगी। ठीक है, आप लिखो अगला। अदर पॉइंट विद रिगार्ड टू ओनरशिप, ओनरशिप के बारे में और दूसरे कौन से पॉइंट है? तो पहला लिखो इसमें ऑफिशियल असाइनीज और रिसीवर, where the owner of property become
insolvent, the official assignees are receivers under the law of insolvency हम्म shall be chargeable in respect of हम्म the income from such house property as the owner. However, the receiver appointed by the court shall not be deemed to be the owner of the insolvent property because the property does not visit क्या है वेस्ट इन हिम. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हम्म इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति है जो रिसीवर है प्रॉपर्टी का, ठीक है, तो रिसीवर हम कब अपॉइंट करते हैं किसी प्रॉपर्टी का? बताओ. जब किसी को मतलब काम के लिए कर दे रखी है वो प्रॉपर्टी. हम रिसीवर तब अपॉइंट करते हैं किसी प्रॉपर्टी का जब हमको उसको बेचना रहती है. और रिसीवर कौन अपॉइंट करता है? कोर्ट अपॉइंट करता है. मतलब जब डिक्री होती है ना, जब कोई व्यक्ति जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है. इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया. हाँ. उसके पास अपने डेबिट्स को डेबिट्स का पेमेंट करने के लिए उसके पास अमाउंट नहीं होता, तो वो दिवालिया हो जाता है. तो उस समय जो रिसीवर हम नियुक्त करती है कोर्ट, तो वो जो रिसीवर है वो जब जो हाउस प्रॉपर्टी है कुछ भी है उसको बेचता है, तो उससे होने वाली जो इनकम है, तो वो इनकम जो है उसका क्या करेंगे हम? वो आधा लोन में भरेगा. उसको तो पेमेंट कर देता है वो, ठीक है, हाँ. लेकिन जो इनकम हुई है उसको उस पर उसको टैक्स पेड करना होता है. तो वो टैक्स कौन पेड करेगा? वही. वो टैक्स पेड करता है रिसीवर, है ना. किससे? वो जो उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हुई है उसी से वो टैक्स पेड करता है. जो लायबिलिटी है उसको पेमेंट करता है वो, ठीक है. यार कहाँ चला गया? एक मिनट.
इसके तो जितने भी पॉइंट है ना वो सब जो है वो मतलब लिख करके याद करने वाले ही रहते हैं। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको देखनी है, ठीक है। पहले हमारे पॉइंट हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद। अगला लिखो, ओनरशिप इन डिस्प्यूट। Where the title to the property is in dispute, the assigning officer is empowered to decide the ownership of the property for income tax purpose. However, where the decision of the court is contrary to the assigning officer's decision, the decision of the court will approval and he will reassess the SSC accordingly. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो असाइनिंग ऑफिसर है वो डिस्प्यूट करने समय ये डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति जो है वो इनकम टैक्स मतलब इससे होने वाली इनकम किस व्यक्ति के इनकम में जोड़ी जाएगी, टैक्सेबल इनकम में, ठीक है। फिर अगला है थर्ड, को ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। Where the property is owned jointly by two or more persons and their respective shares are defined and ascertainable, they shall be assessed individually on their share in the income from the property. इसका मतलब क्या हुआ
अगर कोई प्रॉपर्टी के दो से ज्यादा ओनर हैं जो मतलब ज्वाइंटली है ना, तो हाँ जो इनकम टैक्स जो पेड होगा, तो हाँ जो वो होने वाली इनकम है उस हाउस प्रॉपर्टी से, जो इनकम होने वाली है वो इनकम उनके शेयर के हिसाब से उनके अपने अपने हिस्से में जाएगी। टैक्सेबल होगी। ठीक है। हम्म। फोर्थ लिखो, ओनर इन द प्रीवियस ईयर। Since tax is paid only on the income from paid only on the income for previous year, annual value of property owned by a person during the previous year is taxable in the following assessment year, even if the assessee is not the owner of the property during the assessment year. इसका मतलब क्या हुआ? कि चूंकि हम टैक्स किस पर पेड करते हैं, पिछले साल की इनकम पर पेड पिछले करते हैं कि साल। पिछले साल हमने हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम कमाई है ना। हाँ और इस साल क्या हुआ कि वो जो हाउस प्रॉपर्टी है वो किसी और को बेच दी गई है, तो उससे होने वाली जो इनकम है वो किसकी इनकम में टैक्सेबल होगी? जिसने बेची है उसके इसमें ही होएगी। जिसने बेची है उसकी इनकम में टैक्सेबल होगी। अगला लिखो, स्टेटस ऑफ प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री। A resident assessee is taxable under section 22 in respect of annual value of a property instituted in the foreign country. But not ordinary resident or non-resident is chargeable under section 22 in respect of income of house property instituted abroad only if income is received in India during the previous year. In such case, where tax inclusions in is attached, the annual value is computed as if the property is instituted in India. इसका मतलब क्या हुआ? अगर इंडिया में है तो इंडिया में टैक्स है तो होगा उसे। टैक्सेबल होगी। हाँ, और अगर बाहर है तो अगर कोई व्यक्ति जिसकी प्रॉपर्टी इंडिया में है और वो इंडिया से बाहर है, वो रहता बाहर है, तो टैक्सेबल होगी। हाँ
अच्छा, कि कोई इंडिया में रहता है और इंडिया में ही है, उसकी प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। कोई इंडिया में प्रॉपर्टी इंडिया में, वो बाहर रहता है, उसकी प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। लेकिन कोई इंडिया में रहता है और उसकी प्रॉपर्टी बाहर है, क्या वो टैक्सेबल होगी? नहीं, वो नहीं होगी। वो टैक्सेबल नहीं होगी। अगला लिखो, यूटिलाइज्ड बाय द एसएससी फॉर हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन पर्पस। इसके अंतर्गत लिखो, द एनुअल वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी आर द portion thereof as is utilized by the SSC for the purpose of his own business or profession or vocation, the profit of which are accessible to tax, is not taxable under section 22. The SSC is also not allowed to claim any deduction in respect of national rent will computing income from such business, profession or vocation. However, the SSC can claim deduction under section 32 of the Income Tax Act, and also he can claim other expenses, repairs, insurance, municipal tax, interest, borrowed capital, etc. For such business income, मतलब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है, उसने अपने घर का कोई हिस्सा, है ना, अपने बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए या वोकेशन के लिए यूज करता है वो, तो उससे होने वाली इनकम क्या कहलाएगी? उसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कहलाएगी। ये 22 के मतलब अकॉर्डिंग टू 22 ये टैक्सेबल नहीं होगी। किस में टैक्सेबल होगी? ये बिजनेस इनकम में टैक्सेबल होगी। अगला लिखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ रेंटल इनकम फ्रॉम अ ओन्ड हाउस प्रॉपर्टी। Rents or income arising from ownership of any house property cannot be taxed under any other head since section number 22 provide a specific head for charge of such income to tax in case of commercial property. The SSC company had the sole object of acquiring lands, building house and letting the promises to lend. It was held that the income from property was taxable
under section 22 and not under section 28. The profit and gain of business or profession. However, where the subject which is late is not a क्या लिखा है ये? मेंटेनमेंट Maintainment, but is a complex one as well occupied theater, safe deposits, valuate are क्या है ये values of the storing or the income cannot be said to be derived from mere ownership of house property but may be as accessible as income from business. इसका मतलब क्या हुआ? किराए पे दिया हुआ मकान का टैक्स जो इनकम आएगी उसको टैक्स रहेगा उस पे वो टैक्सेबल होगा। और जैसे किसी चीज के लिए यूज कर रहे हो उसको जैसे हाँ कॉम्प्लेक्स या कोई भी सर्विस के लिए या किसी भी काम के लिए यूज कर रहे हैं तो उस पर वो टैक्सेबल तो होगी लेकिन किस हेड में टैक्सेबल होगी वो? जैसे मतलब कॉम्प्लेक्स बना करके बिजनेस जो हाउस प्रॉपर्टी है उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया तो उससे जो इनकम होगी वो किसमें ऐड हो जाएगी? ऑनर के इसमें उसके ऑनर की उसमें इनकम में। हाँ अब अगला लिखो सिमिलरली द फॉलोइंग इनकम फ्रॉम बिल्डिंग्स इज नॉट accessible अंडर दिस हेड। कौन कौन सी बिल्डिंग से होने वाली कौन कौन सी इनकम जो है वो इस हेड में टैक्सेबल नहीं होगी? पहला है बिल्डिंग और स्टाफ क्वार्टर लेट आउट द एम्प्लॉइज एंड अदर्स where the SSC lets out the building or staff quarter to the employees of business whose residence there is necessary for the efficient conduct of business. The rent collected from the such employees is accessible as income from business and taxable under the head of business or profession and not under this head। मतलब कोई व्यक्ति है और उसने अपने सर्वेंट्स को क्वार्टर प्रोवाइड किए हुए हैं तो और वो जो सर्वेंट है उस क्वार्टर के उसको रेंट पेड करते हैं तो उनसे होने वाली इनकम जो है वो उसकी प्रोफेशनल इनकम कहलाएगी। उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जोड़ी जाएगी। ठीक है। दूसरा है इफ बिल्डिंग इज लेट आउट और ऑथराइज्ड फॉर लोकेटिंग बैंक पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन सेंट्रल एक्सरसाइज ऑफिस income will be accessible as income from business provided the dominant purpose of letting out the building is to enable the SSC to carry on his business more efficiently and smoothly। मतलब कोई बिल्डिंग है उसमें बैंक पुलिस पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन ये सब खुले हुए हैं है ना। हाँ
तो उससे होने वाली जो इनकम है उस किस में जोड़ी जाएगी, उसके प्रोफेशन में जोड़ी जाएगी या बिजनेस इनकम में जोड़ी जाएगी, उसकी हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जोड़ी जाएगी। ठीक है। इसके बाद अगला है कंपोजिट लेटिंग टू बिल्डिंग विथ अदर एसेट, where the SSC lets on hire machinery, plant or furniture belonging to him, and also building, and the letting of the buildings is inseparable from the letting of the said machinery, plant or furniture. The income from such letting is chargeable to tax under the head income from other sources. It is not chargeable to income from under the head of profit and gain of business or profession. यदि कोई बिल्डिंग है, ठीक है, जो दूसरे एसेट के साथ में जुड़ी हुई है, मतलब जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो डिसॉल्व होती है तो क्या करती है, बिल्डिंग भी बेच देती है, अपनी सारी एसेट भी बेच देती है ना। तो जो एसेट से होने वाली जो आय है, इनकम है, कौन कौन सी एसेट से, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, और उसका जो वो स्टॉक है, इन सबको बेचने से होने वाली इनकम क्या कहलाएगी उसकी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस। ठीक है। और उस समय ये जो हाउस प्रॉपर्टी है, इससे उसको बेचने से जो इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और उसमें जोड़ी जाएगी ये। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है ना, अगर किसी कंपनी ने किसी व्यक्ति को फ्री एकोमोडेशन की फैसिलिटी दी है, ठीक है, और उसमें वो क्या क्या दे रहा है, उसमें वो सर्वेंट की सुविधा भी दे रहा है, गार्डनर भी दे रहा है, और कुक भी दे रहा है, और ड्राइवर भी दे रहा है, और कार भी दे रहा है। तो इससे जो होने वाली, तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो जितने भी उसने फैसिलिटी हाउस के मतलब हाउस के अलावा दी है, फर्निश्ड, वेल फर्निश्ड हाउस दिया उसने, तो फर्नीचर और ये सब मतलब जो उसकी जो रेंटल वैल्यू है, उसके अलावा जितनी भी फैसिलिटी उसने गार्डन वगैरह की दी हुई है, उन सबको काट करके, और जो रेंटल वैल्यू है, सिर्फ वही रेंटल वैल्यू उस जो व्यक्ति है जिसने प्रोवाइड कराई है, अकोमोडेशन प्रोवाइड कराया है, उस सिर्फ रेंटल वैल्यू उसकी जो हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू में इंक्लूड होगी, बाकी और कोई वैल्यू उसमें इंक्लूड नहीं होगी। मतलब जो वैल्यूएशन होगा हाउस प्रॉपर्टी का, तो जो बाकी जो फैसिलिटी उसने दी है, वो सारी फैसिलिटी के चार्ज उसमें से माइनस कर दिए जाएंगे, और जो रेंटल वैल्यू आएगी वही उसकी रेंटल वैल्यू उसमें जोड़ी जाएगी। ठीक है। Income to State Industrial Development Corporation for letting out the sheets। इसका मतलब ये टैक्सेबल ही नहीं है पहले तो। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से होने वाली जितनी भी इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है इसमें। फिर सर्विस रेंडर्ड इन
प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूज ऑफ लिफ्ट, सप्लाई ऑफ वाटर, ये तो मैंने बताया, मेंटेनेंस, स्टेयरकेस एंड वॉच एंड वर्ल्ड फैसिलिटी आर नॉट इंक्लूडेड इन लेटिंग आउट प्रॉपर्टी। मतलब किराए से जो प्रॉपर्टी देगा उसमें अगर ये सुविधा दे रहा है तो सारी सुविधाओं से होने वाली इनकम उसकी अलग कर दी जाएगी, सिर्फ हाउस का जो रेंट है वो ही उसकी हाउस प्रॉपर्टी में जोड़ा जाएगा। अब जो उसकी जो अब ये जो हाउस प्रॉपर्टी है इसको हम किस बेस पर वैल्यूएट करते हैं? मंथली करते हैं कि एनुअल करते हैं? एनुअल बेस पे करते हैं। मंथली कौन करता है ना? टैक्स पेड करने के लिए एनुअल बेस पे करेंगे। तो इसको हम किस तरह से इसका जो कैलकुलेशन है हम किस तरह से करेंगे? तो इसमें लिखो नोट नंबर 1, हेडिंग डालो डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 या हाउस प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नोट नंबर 1, the annual value of any property shall be determined to be the sum of which the property might reasonable by expected to late from year to year। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे जितने भी मकान हाउस प्रॉपर्टी है जिनसे उसको रेंटल वैल्यू मिलती है उन सबको जोड़ दिया जाएगा। फिर नंबर 2, नोट नंबर 2, where the property or any part of the property is late and the actual rent received or receivable by the owner is respect their roof is, यहाँ पर thereof है, thereof is in excess of the sum referred to in class receivable or मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी है या प्रॉपर्टी का कोई भाग है जिसकी जो रेंटल वैल्यू है वो रिसीवेबल नहीं है, या जो रिसीवेबल हो गई, जो रिसीव हो गई है वो तो हमने इंक्लूड कर ली हमारी हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन जो रिसीवेबल है मतलब जो हमको आगे मिलने वाली है, क्योंकि वो जो इवेंट है वो तो हो चुका, मतलब आदमी मकान में 1 साल रह चुका है ना? बस उसको हमको क्या करना है, उसकी वैल्यू पेड करना है। तो वो वैल्यू रिसीवेबल है तो वो रिसीवेबल वैल्यू भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है? थर्ड है where the property or any part of the property is late and was vacant during the whole or any part of the previous year and owning the such vacancy, the actual rent received or receivable by the owner is respect thereof is less than the sum referred to the class, the amount so received are receivables। मतलब क्या हुआ कि कोई मकान है और पिछले साल वो कुछ महीने खाली रह गया है ना,
कोई मकान है, पिछले साल वो कुछ महीने खाली रह गया, तो हमको रेंटल वैल्यू जैसे 4 महीने या 3 महीने खाली रह गया मकान हमारा, तो हमको रेंटल वैल्यू कितने महीने की मिली? जितने महीने उसमें रहे हैं हमको 3 महीने रेंटल खाली। वैल्यू 10 महीने की मिली, या 2 महीने खाली रहा तो 10 महीने की मिली, 3 महीने खाली रहा तो 9 महीने की 9 मिली, महीने। 9 महीने की मिली मान के चलते हैं। 9 महीने। अब वो वैल्यू जो है या तो रिसीव हो गई होगी या रिसीवेबल होगी, तो दोनों केस में ही वो उनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। हम्म। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसमें से उसको उसकी जो लायबिलिटी है, अब हाउस प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की कौन कौन सी लायबिलिटी है? म्युनिसिपल टैक्स, हमको नगर निगम को संपत्ति कर जमा करना पड़ता है, करना पड़ता है। हाँ, और फिर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इन सब का हमको जो चार्ज है वो जमा करना पड़ता है, तो इन सब को माइनस करने के बाद जो आएगी वो हमारी आ जाएगी एक्चुअल रेंटल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद लिखो नंबर 2, वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ अ हाउस। लिख रही हो या फिर तुम्हारे पास में है तो सही है? मैम है, वो तो बुक में है पर देख ढूंढना पड़ेगा उसमें बुक में। वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ अ हाउस आर अ पार्ट ऑफ हाउस, तो इसमें पहला है इज इन द ऑक्यूपेशंस ऑफ द ओनर्स फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन रेसिडेंस। अब ऐसा एग्जम्पशन कौन कौन से में होगा, तो सबसे पहला तो है कि जो ओनर है उसने अपने खुद के रहने के लिए जो घर वो यूज करता है, वो घर जो है वो एग्जेम्प्टेड है, उसमें हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा है कैन नॉट एक्चुअली बी ऑक्युपाइड बाय द ओनर्स बाय reason of the fact that owning is to his employment, business or profession carried on at any other place. He has to reside at their place in a building not belonging to him. The annual value of such house or part of the house shall be taken to be nil. मतलब क्या हुआ, कोई व्यक्ति है जो हाँ, किसी और जगह, मतलब उसका जो प्रोफेशन और या बिजनेस है किसी और जगह है ना, और वो रहता कहीं और है। तो उस जो मकान जो यूज करता है वो अपने रहने के लिए, तो उसकी जो नहीं सॉरी, जैसे कोई व्यक्ति है वो उसका वो रहता कहीं और है, कहीं और उसका जो बिजनेस या ऑफिस है या प्रोफेशन है वो कहीं और करता है, और वहां पर जो उसकी जो हाउस प्रॉपर्टी वो यूज करता है, तो वो क्या कहलाएगी, उससे होने वाली इनकम टैक्सेबल रहेगी। टैक्सेबल रहेगी। अच्छा, इसकी एक और कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति है उसका बिजनेस या उसका प्रोफेशन किसी और शहर में रहता है और वो रहता कहीं और है, तो उसकी जो जिस घर में वो रहता है
तो हम्म, वो जो घर है, वो जो हाउस प्रॉपर्टी है, वो टैक्सेबल होगी कि एग्जम्प्टेड होगी? वो कहीं और रहता है और रेंट पे दे रखा है उसने। वो रहता, मतलब जैसे कि तुम नाहलदा में रहती हो, ठीक है, और यहाँ खंडवा में तुम्हारा प्रोफेशन है। तुम वहां से डेली अप डाउन करती हो, रहती वहां हो, और प्रोफेशन यहाँ है, और वहां पर तुम अपने मकान में रहती हो। तो हाँ, वो जो मकान है वो एग्जम्प्टेड होगा तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी के लिए कि टैक्सेबल होगा? एग्जम्प्टेड होगा। एग्जम्प्टेड होगा। नंबर 3, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 shall not apply it। इसके अंतर्गत क्या है? पहला, the house or a part of the house is actually let during the whole or any part of the previous year, or any other benefits therefrom the derived by the owner। उसका मतलब हुआ, घर या जो घर का कोई हिस्सा जो हम्म, किराए से दे रखा है ना, पिछले साल। हाँ, और उससे होने वाला बेनिफिट जो है वो क्या उसमें जुड़ेगा? नहीं, वो जिस घर में रहता है, ठीक है, हाँ, उस घर का कुछ हिस्सा उसने किराए पर दे रखा है। पूरे हिस्से में हाँ, नहीं रहता है, वो आधे हिस्से में ही रहता है, पूरा हिस्सा, आधा हिस्सा उसने किराए पर दे रखा है। तो जो इनकम होगी किराए की, वो क्या टैक्सेबल होगी? नहीं, टैक्सेबल नहीं होगी, एग्जम्प्टेड होगी, ठीक है। हम्म, वेयर द प्रॉपर्टी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन हाउस। पहला है ए, द प्रीवियस ऑफ दैट सबसेक्शन shall अप्लाई ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफ सच हाउस which SSC may add is क्या है ये ऑप्शंस स्पेसिफाई इन हिज बिहाफ। इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति है, उसका जो प्रोविजन है उसका आधा। हाँ, उसका आधा अगर उसने अ, अपने ही किसी व्यक्ति को दे रखा है, हम्म, the annual value of house or houses other than the house in respect of which the SSC has exercised an option under class shall be determined under subsection as if such house or houses had been let। ऐसी हाउस प्रॉपर्टी वही चल रहा है, सब सेक्शन, मतलब हाउस प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट जो है वो हम्म, इस सेक्शन के अंतर्गत एग्जम्प्टेड है।
अब हम देखते हैं कि हमारी जो एनुअल वैल्यू है या नेट एनुअल वैल्यू है वो हमको किस तरह से कंप्यूट करना है, किस तरह से निकालनी है। तो इसके लिए तो तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है, कॉपी में। नेट एनुअल वैल्यू shall be computed in the following manner। क्या क्या करना है सबसे पहले? तो स्टेप 1, determine the gross annual value। अब ये जो ग्रास एनुअल वैल्यू है ये हम किस तरह से निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए हम चलते हैं दूसरी हमारी इसमें। एक मकान का हम मतलब मकान की एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे? डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस। तो इसकी कौन कौन सी वैल्यू होती है? म्युनिसिपल वैल्यू, नगर पालिका मूल्यांकन, फेयर वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू, एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, ग्रॉस एक्चुअल वैल्यू और नेट एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो फार्मूला लिख लो। रिसीव्ड रेंट या रिसीव्ड रेंटल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स, सॉरी, रिसीव्ड रेंटल वैल्यू माइनस फेयर रेंटल वैल्यू, रिसीव्ड रेंटल वैल्यू माइनस फेयर रेंटल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल टैक्स माइनस स्टैंडर्ड रेट अब ये आ जाएगा तुम्हारा ग्रास एनुअल वैल्यू। या एक मिनट, म्युनिसिपल टैक्स इसमें बाद में काटना है, ठीक है। म्युनिसिपल टैक्स, हाँ, पहले क्या क्या लिखा हमने? रिसीव्ड रेंटल वैल्यू माइनस फेयर रेंट माइनस स्टैंडर्ड रेंट माइनस म्युनिसिपल टैक्स या म्युनिसिपल वैल्यू माइनस म्युनिसिपल वैल्यू
तो ये आ जाएगी तुम्हारी ग्रास एक्चुअल वैल्यू, और उसमें से हाँ ग्रास एक्चुअल वैल्यू, उसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो वो आ जाएगी तुम्हारी नेट एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, जब आगे हम करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, लेट आउट प्रॉपर्टी ये क्या होती है? जो हम किराए पर उठाते हैं, है ना? तो उसका जो रेंट होता है वो एक्सपेक्टेड रेंट होता है। ठीक है, higher municipal value and the fair rental value shall be expected rent। fair rental value और municipal value जो रहती है उतना वो एक्सपेक्ट करता है कि उतना रेंट उसको मिल जाए। ठीक है, therefore from this judgment is in evident that expect rent shall not be exceed at the स्टैंडर्ड रेंट। मतलब ये भी स्टैंडर्ड नहीं रेंट नहीं है, म्युनिसिपल वैल्यू और रेंट फेयर रेंटल वैल्यू। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट इज, ये क्या है, सैला कुछ क्या है, खुशिश कोशिश एंड अमलोक राम किशोर खोसला कोशिया, खोसला इनके केस में held that where the property let house is governed by the Rent Control Act, the standard rent fixed are applicable for the area of property will have to be taken from the determining the annual value. Also, it was held in the case of Balbir Singh, sorry, that throughout the expected rent cannot exceed standard rent, but it can be lower than standard rent. देखें म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है। म्युनिसिपल वैल्यू इज द वैल्यू डिटरमाइंड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटीज फॉर द लिविंग म्युनिसिपल टैक्स ऑन हाउस प्रॉपर्टी। जो निगम जो है वो किसी मकान की जो जितनी भी वैल्यू निर्धारित करता है वो उसकी म्युनिसिपल वैल्यू कहलाती है। ठीक है, फेयर रेंट वैल्यू, fair rent is the amount which is similar property can fetch in the same or similar locality. It is its late for a year। मतलब जिस साल में वो अमाउंट लिया जा रहा है उस साल में उस लोकेलिटी में उस तरह की प्रॉपर्टी की जितनी भी वैल्यू होगी, मतलब उस तरह के जैसे 3 BHK 2 BHK के मकान होते हैं, है ना आजकल। तो इनकी जो रेंटल वैल्यू होगी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में उनकी जो रेंटल वैल्यू होगी वो उसकी फेयर रेंटल वैल्यू होगी। मतलब 3 BHK का मकान मतलब 2000 में, या 4 BHK का मकान 5000 में, इस तरह की वैल्यू। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट
The standard rent is fixed under the Rent Control Act. In such case, the property cannot be let for the amount which is higher than the standard rent fixed under the Control Act. मतलब जो रेंट कंट्रोल जो स्टैंडर्ड रेंट है वो कौन डिसाइड करता है? वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत एरिया वाइज डिसाइड होता है कि कितना पर्टिकुलर एरिया है जिसको हमने रेंट पे दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअल रेंट या रिसीव्ड आर रिसीवेबल रेंट। एक्चुअल रेंट फॉर द लेट आउट पीरियड इट इज द डी फैक्टो रेंट। ये क्या होता है? What should be have been the actual rent? For example, if water and electricity, हाँ, एक्चुअल रेंट मतलब वही बताया था मैंने कि कोई व्यक्ति है जिसने रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड किया है अपने कर्मचारियों को, और वो उनसे रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं किया है, वो रेंटल है, और लेकिन क्या किया उसने, वो जो रेंट हाउस जो उसने प्रोवाइड किया है उसमें फर्नीचर वेल फर्निश्ड है, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो ओनर दे, इलेक्ट्रिसिटी बिल की सुविधा दी हुई है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल वो लेता है उससे, सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल लेता है, वाटर का चार्ज लेता है, गार्डनर का चार्ज लेता है। तो ये सारे चार्जेस जो है वो उसकी जो टोटल रेंटल वैल्यू है उसमें से ये सारे चार्जेस माइनस करके सिर्फ जो हाउस प्रॉपर्टी की रेंटल वैल्यू है वही ली जाएगी, ठीक है। अब जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम डिसाइड कर लेंगे उसके बाद उसमें से लेस करना है म्युनिसिपल टैक्स। द टैक्स इंक्लूडिंग सर्विस टैक्स, फायर टैक्स, क्या है, कंजर्वेंसी टैक्स, एजुकेशन वेलफेयर टैक्स, ये सब म्युनिसिपल टैक्स में मतलब इंक्लूडेड रहते हैं। Laid any municipality or local authority is respect of any house property to the extent to which such taxes are borne and paid by the owner and include enhanced municipal tax finally determine the appeal and the payable by the SSE. However, the deduction is respect of the municipal tax will be allowed in the determining the annual value of the property only in the year in which municipal tax are actually paid by the owner. इसका मतलब क्या हुआ? अगर म्युनिसिपल टैक्स ओनर पेड कर देता है तो ओनर ही तो पेड करेगा, और कौन पेड करेगा? Where the tax on property is enhancement with the retrospective effect by the municipal or local authority, and the enhanced tax relating to the prior year is demanded during the assessment year. Entire demand is the deductible. Even where the property is situated outside of the country, tax levied by local authorities that country are deductible.
deciding the annual value of the property. Tax on property is enhancement with the retrospective effect by the municipal or local authorities. इसका मतलब क्या हुआ? रेट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है? ये बात सुना वर्ड रेट्रोस्पेक्ट। Will the calculating the annual value of the accordance will section number 23. The following situation may be arise. पहला, if the property is laid out throughout the previous year, no unrealized rent and no vacancy. ऐसी प्रॉपर्टी जो किराए पर उठी हुई है या और जिसको जो कभी खाली नहीं रही है, मतलब प्रीवियस ईयर में, ठीक है, और उसका ऐसा कोई अमाउंट भी है जो अनरियलाइज्ड है, मतलब जो मिला नहीं है, ठीक। दूसरा है, if the property is let out throughout the previous year but the entire rent could not be collected, मतलब जो रेंट है वो रिसीवेबल है, कलेक्ट नहीं हुआ अभी, ठीक है। मतलब कौन कौन किन किन वैल्यूएशंस को हम इसमें ऐड कर सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट के लिए, ठीक है, या टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी की टैक्सेबल इनकम के लिए, ठीक। तीसरा है, इफ द एंटायर रेंट इज कलेक्टेड बट द प्रॉपर्टी रिमेन वेकेंट, मतलब रेंट तो हमने ले लिया लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है वो खाली पड़ी हुई है। If the property remains vacant and their entire rent is not collected, अब प्रॉपर्टी जो है वो खाली पड़ी हुई है तो और उसका जो रेंट है वो भी कलेक्ट नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे इसको? इनकम तो हुई नहीं, इनकम ही तो देंगे, इनकम पर ही तो देंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, डिटरमाइंड एक्सपेक्टेड रेंट एंड एक्चुअल रेंट। हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट किस तरह से निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट किस तरह से निकालेंगे? हायर ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब जिसका स्टैंडर्ड रेट है उसके हिसाब से जो म्युनिसिपल मतलब म्युनिसिपल कारपोरेशन जो सबसे ज्यादा उसकी वैल्यू जो है डिसाइड करता है वो, या उसकी फेयर रेंटल वैल्यू जो कि स्टैंडर्ड रेंट के बराबर हो, जो कि स्टैंडर्ड रेंट के बराबर हो, ठीक है। दूसरा है एक्चुअल रेंट। क्या होता है? रेंट फॉर ऑल आउट पीरियड और लेट आउट पीरियड, मतलब जितने भी समय वो प्रॉपर्टी है वो किराए पर उठाई हुई है उस प्रॉपर्टी का मिलने वाला रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट फॉर द रिलेवेंट पीरियड, और जितना भी उसको रेंट अनरियलाइज मतलब मिला नहीं है उसको माइनस करने के बाद जो रेंटल वैल्यू आएगी वो एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू, सॉरी वो रेंटल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, ठीक है। अगर एक्चुअल रेंट जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट वैल्यू से ज्यादा होगा तो कौन सी वैल्यू ली जाएगी? रेंटल एक्चुअल रेंट लिया जाएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू लिया जाएगा? क्या अगर If actual rent is more than expected rent, then actual rent otherwise expected rent.
यदि जो कम एक्सपेक्टेड वो रेंट लेंगे, एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो किसको लेंगे हम? एक्सपेक्टेड रेंट को लेंगे। तो एक्चुअल रेंट को लेंगे, और अगर नहीं है तो एक्सपेक्टेड रेंट को लेंगे। मतलब दोनों में से जिसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी उसको लेंगे हम, ठीक है। अच्छा। If a property remain vacant and annual value decline due to vacancy, then such decline value shall be considered. यदि प्रॉपर्टी खाली रही है तो उसकी जो एनुअल वैल्यू है उसमें से जो वैकेंसी के टाइम की वैल्यू है उसको कंसीडर कर देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, ठीक है। ग्रॉस एक्चुअल वैल्यू अकॉर्डिंग टू स्टेप 2, इफ नो वैकेंसी, मतलब जब हमारी जमीन खाली नहीं रही है तो। अब इसको जरा एक क्वेश्चन के इससे समझते हैं, ठीक है। मिस्टर एक इज द ओनर ऑफ 3 हाउस which are all let out and not governed by the Rent Control Act. From the following particulars, find out the gross annual value in each case. ठीक है, पहला दिया है म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरी है एक्चुअल रेंट और तीसरा दिया हुआ है फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू तीनों मकान की 30,000, 20,000 और 35,000 है। एक्चुअल रेंट 32,000, 28,000 और 30,000 है। फेयर रेंट 36,000, 24,000 और 32,000 है। किस तरह से निकालना है इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू? तो एक्चुअल रेंट मतलब हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ठीक है। तो इनकी जो इनकी जो वैल्यू दी है वो कितनी कितनी दी हुई है? हायर म्युनिसिपल वैल्यू 30,000, 20,000 और 35,000 दी हुई है, ठीक है। और इसकी एक्चुअल वैल्यू और फेयर रेंट में सबसे ज्यादा कौन है? तो ये इसका फेयर रेंट दिया हुआ है 36,000, इसका 24,000, तो इसकी 28,000 होगी, इसकी 36,000। पहले वाले की 36,000, दूसरे की 28,000 और तीसरे की 35,000, ठीक है। ग्रास एक्चुअल वैल्यू, ठीक। मतलब इनमें से जो ज्यादा होगी हमको उसको लेना है, ठीक है। चलो आज इतना, कल से हम देखेंगे आगे का। बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।